Yeah, in today's class, what will I cover? In today's class, I will conduct uh, I will conduct an oral test. Means the previous lecture which I had covered. Yes, in my previous lecture, I had covered Renaissance or the age of revival. You can say from 1450 to 1550. Nowadays, I am going with what? Nowadays, I am going with history of English literature. Until now, I have delivered 4 lectures. In my first lecture, I have gone with Anglo-Saxon. In remaining 3 lectures, I have covered the Middle Ages and the Age of Revival. So, I have also conducted oral test on Anglo-Saxon and Age of the Middle Ages. But in this class, I will cover Elizabethan Age, and with Elizabethan Age, I will ask some questions related to what? I will ask some questions related to Renaissance को लेकर के. So sharing with you, you can say कि this whiteboard here I will write something. You have only to give me the answer. If I ask you a point, that is what कि India was discovered. India was discovered. Yeah, who discovered India? Who discovered India? Yeah, India was discovered by whom? Vasco da Gama, 1498. 1498. वास्को डी गामा 1498. 1498. एक कल ये हमने कवर किया था, वास्को गामा डी गामा इन 1498. Then I asked a question yesterday. America was discovered. America was discovered By Columbus who? in 19 Columbus in 1492. 1492. By 1492. By Columbus, Columbus. Columbus, by Columbus in 1492. ठीक है, that's good. Third question है, printing press was invented. Printing William press Caxton. was invented. Good. Printing press was invented by William Caxton. Good. Then the next point is that William Caxton invented printing press. Who invented telescope? Who invented? Galileo. Galileo. Yes, Galileo. Galileo. Who invented telescope? Galileo. Galileo. In the field of astronomy, के field में I put 2 names. Astronomy. Copernicus. In the field of astronomy, I put 2 names. One was Copernicus Nicus and Ptolemy. and second was what? And second was Ptolemy. Ptolemy. What was the contribution of these 2 astronomers? ये जो 2 astronomers रहे हैं, इनका क्या contribution था? So Copernicus said that Earth is the center in the universe. Earth is in the center of the universe. Or solar system. Solar Sun is system. revolving around the sun, revolving around the earth. Yes. And later on it was challenged by whom? Later on it was challenged by Ptolemy. Later on it was challenged by Ptolemy. Yes, sir. In Renaissance, you find that it was said, during Renaissance, it was said that the sun is in center and the earth moves around it. Renaissance में ये बात कही जाती है, क्या बात कही जाती है कि the earth moves around the sun.
रिनेशा से पहले ये कहा जाता था कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। तो रिनेशा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इट वाज द एज ऑफ रीजन, REASON. It was the age of, you can say, something logic. It was an age of scientific discoveries. As you find so many inventions and discoveries in this era, in the same way in the field of astronomy, these are the two popular names, Ptolemy and Copernicus. When you talk about Ptolemy and Copernicus, you must remember that कि ये दो के दोनों जो है क्या थे, इनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसमें क्या था, you find that Earth moves around the sun. It means that the sun is एक तरह से जो सन है वो सेंटर में है, जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एक्सेप्ट इट देयर वर सम अदर थिंग कि रिनेशा वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हिच एज? रिनेशा वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हिच एज? Was it a reaction medieval Medieval age, sir. Middle ages. against द मिडिल एजेस? जब भी आप वर्ड यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? द मिडिल एजेस। द मिडिल एजेस का टाइमिंग क्या है? 1066 से लेकर के 1450 तक। तो रिनेशन जो था ये एक तरह से द मिडिल एजेस के अगेंस्ट में रिएक्शन था। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, जब आप इस रिएक्शन को लेकर के बात करते हैं, यू फाइंड कि इट इज नोन एज द मिडिल एजेस बिकॉज ऐसा नहीं कि केवल एक एज है, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे केवल एक एज रहा है, बल्कि द मिडिल एजेस को में आप तीन एजेस को पाते हैं। और ये जो तीनों एजेस थे वो कौन कौन से थे? एंग्लो नॉर्मल पीरियड Age of Chaucer और एज ऑफ चौसर and Dark Age. डार्क मिडिल एज and dark middle age. Especially it was a reaction against the middle ages. In middle ages वो कौन सा सिस्टम था जिसके खिलाफ ये एक रिवोल्ट था? In one words, what the word you would like to use for that system against The feudal which? system. Yes, Feudal good. system. That feudal system. Feudal system. You find here कि medieval, the middle ages में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उस सामंतवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं? उस मूवमेंट को हम आपका रिनेशा, एक उसका मतलब ये खासियत था, एक ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू नो कि एक्सेप्ट द फ्यूडल सिस्टम या इन सब चीजों के अलावा एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड व्हाट वाज दैट वाज कि जब भी आप इस सिस्टम को लेकर के बात करते हैं तो इस सिस्टम में बहुत सारा रिलीजन को लेकर के या उसके पैरेलल और भी तमाम चीजें होती हैं जो चलती हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ रिनेशा, तो रिनेशा के बेसिक फीचर में एक वर्ड आता है और उस वर्ड का नाम है, दैट इज इट वाज एन एज ऑफ ह्यूमनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिज्म? What So do you man is mean by above in comparison of religion. man is Humanity is above? above to religion. Yeah, ह्यूमनिज्म we can मींस use द this. Yeah, सर ह्यूमनिज्म मींस they were the men of patriotic, they were amiable men, they were social people also.
When you say कि humanism, remember that humanism जब भी किसी शब्द के लास्ट में ism लगता है, then it means कि practicing or believing, BELIEVING, believing इन एन आइडियोलॉजी, कोई भी आइडियोलॉजी, नई विचारधारा की प्रैक्टिस करना, उसमें विश्वास करना। और जो ये प्रैक्टिसिंग था, ये कैसा था? प्रैक्टिसिंग आर बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी। व्हाट आइडियोलॉजी? दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। ग्रीको रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। जो ग्रीक का, जो रोम का आर्ट और लिटरेचर था, जो प्लेटो का जमाना था, जो अरिस्टोटल का जमाना था, जो सॉक्रेटिस का जमाना था, जो लॉन्जाइनस का जमाना था, वर्जिल का जो समय था, जो समय होमर का था, उस समय का जो लिटरेचर था या उनके जो थॉट थे, उनकी जो फिलोसफी थी इंसान को इंसान बनाने का। और जैसा कि कहा गया कि मेन आर अबव, अगर या इफ आई यूज द वर्ड कि जो मेन हैं उनका एक अपना इम्पोर्टेंस है, दे मस्ट लव देमसेल्व्स, दे आर नॉट द you can say कि petty object of nature, they are the rational creature of God, they are the greatest creator of God, they should love themselves, they have respect, they have honor, they should think about themselves and the world in which they were living. This is why it was said that कि Renaissance was the discovery of man himself and the world in which he was living. ये चीज कहा गया कि रिनेशा क्या था? डिस्कवरी थी खुद की, मैंने खुद अपने बारे में खोजा और जिस दुनिया में वह रह रहा था उसकी उसने खोज की है। तो आई जस्ट वांट टू से या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वेन एवर यू टॉक अबाउट रिनेशा या वेन एवर यू टॉक अबाउट ह्यूमनिज्म, तो ह्यूमनिज्म का सिंपल सा मतलब स्टडी ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट एंड लिटरेचर, एक ऐसा प्रैक्टिस या बिलीविंग आया। और मिडिल एज के खिलाफ खड़ा होना, द मिडिल एजेस के खिलाफ, फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना। और साथ ही साथ और सारे वर्ड्स थे, लिबरलिज्म, उदारवादी व्यवस्था, कल्ट ऑफ ब्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय कल्ट ऑफ ब्यूटी? CULT, कल्ट ऑफ ब्यूटी। सर सुंदरता के उपासक। सुंदरता की उपासना, ब्यूटी वाज वर्शिप्ड। And how the beauty was worshipped? Not only the inner beauty, means beauty of soul, beauty of heart, emotion and feelings, even the physical appearance. And except physical appearance, you come to know that the writers of this time, they talk about nature, they talk about natural objects, concept of navigation came, the people started voyage, and you will come to know they gone from one place to another place. So they started their journey through sea, through ocean, and they got nature, natural beauty, rising of the sun, setting of the sun, and so many animals, so many things they saw. They admired God and their creativity. So in this way, in true sense, they came to know about God, they came to know about the creativity of God, things made by God, created by God, and उनका जो इमेजिनेटिव पावर था वो बहुत ऊपर तक जाता है इंसान का। जब वो दुनिया की यात्रा पे निकला, he found another land, he found mountains, he saw rivers, he saw forest, gugger sound of the river, chirping of the bird, as we see in the poems of William Wordsworth. So when you talk about cult of beauty, here beauty does not mean only the beauty of the beloved has been admired, beauty of lover has been praised. No, not at all. Beauty of soul, beauty of heart, nature, natural beauty, these things you see. And except it, you can just take the example of पेट्राच ने अपने सोनेट में अपनी बिलव्ड को जैसा प्रेजेंट किया है,
he has presented the angelic figure, उसने अपनी beloved का angelic figure present किया है. So these things you see जो वहां पे था. Now the next question which I want to know, that is what, why 1453 is important? Why 1453 is Sir, important? Turks attacks Constantinople. Constantinople. Turks attacked Constantinople. Constantinople. Turks attacked Constantinople. 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 I just want to know what was Constantinople, what the significance it had, and why this attack was important, what type of changes came by this attack. ये बात तो सही है, तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया था. What was Constantinople? Sir, this was the capital of Ottoman Empire. It was the capital of Eastern Roman Empire. Yeah, it was the capital of ईस्टर्न रोमन एम्पायर. ये जो कैपिटल था रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी. मैंने बताया कि उस समय जो है रोमन साम्राज्य का मतलब ऑटोमन किंगडम, जो रोमन साम्राज्य था उसको जिस किंगडम के नाम से जाना जाता था वो क्या था? ऑटोमन किंगडम. और दूसरी तरफ जो किंगडम था इसके जो फॉलोवर्स थे वे क्या थे? क्रिश्चियन थे. दे वर द फॉलोवर ऑफ जीसस क्रिस्ट, दे वर क्रिश्चियंस. दूसरी तरफ तुर्किश किंगडम था, तुर्किश किंगडम. इसके जो फॉलोवर थे दे वर तुर्क, Islam taught. are the follower of Islam. So you find that कि often they clashed. That was the crusade, CRUSAD, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, इस तरह का चीजें चलती थी. तो जो ऑटोमन किंगडम था दे ऑलवेज डिफीटेड तुर्क या तुर्किश किंगडम को. बट तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड दे वन दिस बैटलफील्ड. एंड बीइंग द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, scientists, artists, philosophers, intellectuals, people of modern thought, they were living there. As Turk attacked, they were forced to leave the capital and just spread where they went to France. And when they went to France, they didn't go with empty hand, but with their manuscript. And the manuscript was what? In that manuscript you find what? You find scientific thought, you find scientific approaches of life, you find so many discoveries, you find so many you can say ki inventions, you find things related to humanities, literature, painting, art, dance, म्यूजिक. तो अभी तक जो ये चीजें थी दैट वाज जस्ट यू कैन से कि it was put at a fixed area. These things were only found in a limited area, but with this attack it expanded in an other area. It just cracked that boundary and people went where? People went to France. So फ्रांस के लोग इन सारी चीजों से परिचित हुए. Now I just want to know, Renaissance was a pan-European movement. PAN, pan-European movement. What do you mean by pan-European movement? What is pan-European movement? Renaissance was a pan, yeah, a movement which covered the whole Europe. Pan-European movement का मतलब कि a movement which covered the whole Europe. A movement which covered the whole Europe. Covered the whole
Europe. Then Renaissance first came in which country? Italy, France, or England? Sir, Sir, Italy. Italy. In 14th century. Italy, 14. in 14th century. And in France, Sir, 15th 15th century. century. 15th century. 15th Sir, at century. the And in England, sir, 16th century. 15th century. 15th century. 16th century. So you see what you see there. Renaissance जो है आपका फ्रांस में आता है, इंग्लैंड में आता है और इटली में आता है। जब वो फ्रांस में आता है तो 15th सेंचुरी में सॉरी आता है, इंग्लैंड में आता है तो 16th सेंचुरी में, शुरुआत उसकी इटली से होती है 14th सेंचुरी में। इट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट विच यू सी देयर कि रेनेसां में ह्यूमनिज्म की बात होती है तो एक क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट? सबसे पहला ह्यूमनिस्ट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट? यस, Petrarch. हु वाज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट? पेट्रार्च। पेट्रार्च के बारे में आप जो कुछ भी बता सकते हैं, जस्ट शेयर विद मी। व्हाट डू यू नो अबाउट पेट्रार्च? Sir, he introduced the sonnet in England. नो, और ये तो ब्लंडर आपने कर दिया। The father of sonnet. पेट्रार्च का इंग्लैंड के सोनेट से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रार्च का मतलब कि इटालियन पोएट। कौन सी सेंचुरी के? 14th सेंचुरी के। और इनको क्या कहा जाता है? इनको ये कहा जाता है कि वो जो है इटालियन पोएट थे 14th सेंचुरी के, फादर ऑफ सोनेट, ना कि इंग्लिश सोनेट, फादर ऑफ Okay, sir. Sorry, sir. सोनेट, फादर ऑफ सोनेट। इन्होंने जो सोनेट लिखा उसको इन्होंने ऑक्टेव में बांटा और सेस्टेट में बांटा। ऑक्टेव में कितना स्टैंजा, कितना लाइन होता है? Sir, 8 lines. 8 lines. 8 लाइन्स। सेस्टेट में कितना लाइन्स होता है? 6 lines. 6 लाइन्स। पेट्रार्च के सोनेट का राइम स्कीम क्या है? A B B A A B B A C D E C D E. CDE. ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, समटाइम्स सी डी सी या सी डी सी। ठीक है। पेट्रार्च के सोनेट में लव है, पेट्रार्च के सोनेट में ब्यूटी है। पेट्रार्च ने अपनी बिलव को एंजेलिक फिगर के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज बिलव? उनकी बिलव का नाम क्या था? सर लारा। Laura, sir. लाउरा, लाउरा। LAUR। उनकी बिलव का क्या नाम था? लाउरा। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पेट्रार्च ने जो सोनेट शुरू किया, इस सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? अब यहाँ क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड? सर हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। ओ नो Yacht, सर, sir. मैंने इसके पहले बताया। Sorry, Sir Thomas sorry, Yacht. sir. Sir Thomas Yacht. सर टॉमस यॉट ने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने वही पैटर्न अपनाया जो पैटर्न जो है किन्होंने अपनाया था? पेट्रार्च ने। तो हु इंट्रोड्यूस सोनेट? सर टॉमस यॉट इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। ही adopted the same pattern. He adopted the same pattern which was done, which was started by Petrarch. But another was another man, that was Henry Howard Earl of Surrey. Henry Howard Earl of Surrey. हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट के पैटर्न में तब्दीली लाई थी। जो इन्होंने तब्दीली लाई क्या था? इनका नाम हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे। जो तब्दीली लाई थी क्या था? Sir, pattern Sorry, is sorry. complete. He used 3 quatrains. 3 quatrains and a couplet. 3 quatrains. What did he use? He used 3 quatrains. He used 3 quatrains and a couplet.
उन्होंने किसका यूज किया था? 3 क्वार्टेंस का यूज किया और किसका यूज किया? एक कपलेट का यूज किया। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट 3 क्वार्टेंस, तो क्वार्टेंस का क्या मतलब होता है? Sir, 4 line. Stretch of 4 lines. Quatrain means 4 lines stanza. Quatrain means 4 lines stanza. Then when you talk about couplet, pair of rhyming words. 2 lines. Yeah, 2 lines या आप उसको कह सकते हैं pair of rhyming words. Next point I want to know कि 3 quatrains and a couplet, it was used by whom? 3 quatrains and a couplet, it was used by Henry Howard Aloysius. William And when you Shakespeare. talk about this man Henry Howard Aloysius, you find that later on it was imitated by whom? Later on it was imitated by William Shakespeare. William Shakespeare. He composed 154 sonnets. ये बाद में बात होगी कि he dedicated his sonnets Dark Lady, W.H. and Cupid. And you find what की love, you find beauty and also roll of time. उसका क्या था? लेकिन सारा का सारा चीज वही था जो हेनरी होवर्ड अल्लाफ ने शुरू किया. बट यू फाइंड कि हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे डिडंट गेट नेम एंड फेम. what the popularity was gained by William Shakespeare. जो popularity विलियम शेक्सपियर ने गेन किया, वो popularity किसको नहीं मिलती है? हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे को. क्योंकि हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे का जो सोनेट है वो उनके साथ ही पब्लिश हो जाता है और उसका नाम क्या रखा गया था? टॉटल्स मिससिलेनी. TOTTLE'. टॉटल्स मिससिलेनी. MISCELLANY. Totals Miscellany. Whenever you talk about Totals Miscellany, then remember that ki Totals Miscellany, it was a collection of the sonnet composed by whom? Sir Thomas Yard and Henry Howard Aloysius Surrey. और यहाँ पे जो सोनेट था ये टॉटल नाम के पब्लिशर ने पब्लिश किया था. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज टॉटल्स मिससेलेनी. So in this way you came to know about what? In this way you came to know some significant points, examination oriented point, which can be asked, yeah, which had some significance, and from the perspective of examination you have to learn it again and again. Yeah, you have to revise it. Now you just see what? Now you just see कि इतना करने के बाद एक और चीज है जिसमें कल हमने कुछ आपको टेक्स्ट को लेकर के मैंने आपको बताया था. उस टेक्स्ट में मैं आई विल जस्ट पुट द नेम हियर. यू हैव टू टेल मी कि कौन कौन से वो टेक्स्ट थे और उसमें हमने क्या बताया था. शेयरिंग विद यू अगेन व्हाइट बोर्ड. There was a book and the name of the book was Marte d'Arthur. Marte d'Arthur. Who is the writer of this book? Thomas Mallory. Thomas Mallory. Thomas Mallory. इसमें जो है किंग आर्थर को, जो बहुत ही फेमस इंग्लिश किंग थे, उनकी ब्रेवरी, उनके करेज को लेकर के बात की गई. सो यू फाइंड कि मॉर्टे डी आर्थर थॉमस मैलोरी का वर्क है. लेटर ऑन इट वाज इन लैटिन. It was in Latin, but it was translated into English by William Caxton 1485 में. 1485 में विलियम कैक्सटन ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था. Another book I just want to know, that was what? That was the Euphues. 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 Whose work is this? John Lilly. John Lyly. You find कि it's the work of John Lyly. John Lyly का work है, that was the Euphues. And except it you find what? Except it you find another work, that was Rosalind. ROSALYND. Rosalind.
Whose work is this? It Sir, was a Thomas Nash. prose rom. It was a prose romance. A prose romance. Not Thomas Nash. Not Thomas Thomas Nash. Thomas Lodge. Lodge. Thomas Lodge. Yes, sir, Thomas Lodge. Thomas Lodge. Lodge. So another work which you have to remember, that was Spanish tragedy. Thomas Kid. Thomas Kid. Thomas Kid. Thomas Kid. Another work which you have to remember, Gar Burdock. Thomas Sackville and Thomas Norton. Thomas Uh, Sackville, yeah, Thomas Sackville and Thomas Norton. Norton. Yes, Thomas Norton. Another work which you have to remember, that is the Ralph Reister. Deister. it's Nicholas Udall. Nicholas Udall. Nicholas Udall. First comedy, Nicholas Udall. Nicholas. Nicholas Udall. Udall. Nicholas Udall. Another work which you have to remember, that was the एक और था जिसमें I would like to hear put the name, Unfortunate Traveler. Unfortunate Traveler. Or the Life of Jack Wilton. EM. ये पिकरेस्क नॉवेल रहा है. It was the first picaresque novel in English. Unfortunate Traveler or the Life of Jack Wilton. By whom? By Sir- Thomas Nash. Thomas Nash. Another work was what? Utopia or the Kingdom Nowhere. इसी का By सबटाइटल. Thomas More. Yes, or the Kingdom Nowhere. किसके द्वारा? Moore's Thomas More, Utopia. sir. Thomas Thomas More. More. So you find these things. What I want to say, whenever you go with these works, इसके अलावा Toxophilus are shooting something करके था. You find that. I just want to tell you कि whenever you go with these works, there are some significant things which you have to keep in your mind. You have to recall it. You have to memorize it. You have to go with these points. Yesterday, I just mentioned a name, that was the name of Taine. Taine. Taine, a critic. Taine को क्यों याद किया गया था? Taine ने क्या कहा था? Do you remember? So Taine said that after many years, man opened their eyes. सर ब्लाइंडेड के बारे में कहा था सर. Yeah. Taine ने मैं exactly, I am not just quoting his lines, but I just want to tell you, man was under heavy asleep. Suddenly he woke up and found some marvelous changes, some big changes around him. कि मैन जो है एक गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक वह जागता है और अपने चारों तरफ एक बड़ी तब्दीली पाता है. तो जो वो सोया हुआ था क्या था? तमाम तरह के साइंटिफिक डिस्कवरी से, इन्वेंशन से और तमाम चीजों को लेकर के. तो ये टेन का स्टेटमेंट था कि फॉर मैन वाज under heavy asleep. Man was under
heavy asleep. 10 के अलावा एक और क्रिटिक का नाम बता सकते हैं विच आई मेंशन yesterday? Sir, Lamartine. What did he say? Sir, he said that Renaissance man discovered himself and the universe. Yeah. Man discovered himself and the universe. So in this way you came to know about what? In this way you came to know about Renaissance. It means I have conducted an oral test. या वो सारे पॉइंट्स को लेकर के हम लोगों ने बात किया है. Now after it sharing with you that PDF file, जिसमें आज हम किस पर बात करेंगे? एलिजाबेथन एज को लेकर के बात करेंगे. जस्ट शेयरिंग यू. We have done this page. We have done this page also. John Wycliffe I have covered yesterday. All these things, एज ऑफ रिवाइवल इसको कवर किया गया था, जिसमें टोक्सोफिलस का, स्कूल ऑफ शूटिंग का और तमाम चीजें थी, इसको बात किया गया था. और बाइबल से रिलेटेड जितनी चीजें थी उसको लेकर के बात किया गया था. ब्लैंक वर्स को लेकर बात किया गया था. ये जो फर्स्ट बुक है, जो द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ये पूछा जा चुका है. फर्स्ट बुक, कैक्सटन एंड ब्रूकेस प्रिंट द फर्स्ट बुक. Now today we will cover एलिजाबेथन एज. एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक. और क्वीन एलिजाबेथ वाज द डॉटर ऑफ हेनरी एट्थ. जो हेनरी एट्थ थी उनकी बेटी क्वीन एलिजाबेथ थी, एंड बाय हिज सेकंड वाइफ. सो whenever you talk about Elizabethan age, it covers the period from 1558 to 1603, and Queen Elizabeth was the daughter of Henry VIII की बेटी थी, और जिस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं वह स्टुअर्ट डायनेस्टी था. और इसी समय अगर आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंग्लैंड वन स्पेनिश आर्माडा. जो स्पेनिश आर्माडा था उसका डिफीट होता है. तो ये क्वीन विक्टोरिया की एक बड़ी विक्ट्री मानी जाती है. कब हुआ था ये? 1588 में. इंग्लैंड वन स्पेनिश आर्माडा इन 1588. एक क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि हु सेड in the words of John Milton, a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shake her invincible locks. ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? जॉन मिल्टन के द्वारा दिया गया. किसके लिए दिया गया? एलिजाबेथन एज के लिए दिया गया. अभी लास्ट ईयर टीजीटी या पीजीटी में दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हु सेड अबाउट एलिजाबेथन एज? जॉन मिल्टन सेड अबाउट एलिजाबेथन एज. एलिजाबेथन एज क्या था? इट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. It was the age of peace and prosperity. It was the age of the development of prose, poetry and drama. It was an age of comparative religious tolerance. इस समय धार्मिक उन्माद उतना ज्यादा नहीं था, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे. और it was an age of social contentment, सामाजिक संतुष्टि का एज था. It was an age of dreams of adventure, of unbounded enthusiasm, springing from the new lands of fabulous riches रिवील बाय इंग्लिश एक्सप्लोर्स. तमाम तरह के नए ख्वाबों को सजाने का ये था, या यू कैन से कि तमाम एडवेंचर, नेविगेशन, और दूसरी जगह पे तमाम लोग जो है यात्रा पे जा रहे थे. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसी समय आई हुई थी, एलिजाबेथ के ही समय में. उसी समय उन्होंने ही उसको बनाया था जो है, कब 1600 ईस्वी में. तो यू फाइंड दैट कि ये जो एज था, वाइज का एज था, ग्लोबलाइजेशन का एज था, बिजनेस का एज था, ह्यूमैनिटीज, आर्ट और लिटरेचर का एज था. द पीपल वर connecting with one nation to another nation. They became able to know about the culture, art, all these things. Then you find कि the age of Elizabeth was a time of intellectual liberty का एज था.
growing intelligence and comfort among all classes of unbounded patriotism and peace at home and abroad. जो पीस था वो उनके भी राज में था और दूसरी जगहों पे था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पैट्रियटिज्म, देशभक्ति का एज था। इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिजाबेथन एज में सबसे ज्यादा किस लिटरेरी जानरा का डेवलप हुआ, ड्रामा का ये गोल्डन एज था। ड्रामा वाज ब्रॉट रैपिडली टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। सबसे तेजी के साथ ड्रामा का डेवलपमेंट होता है। उसके डेवलपमेंट के पीछे क्या था, जो एलिजाबेथन एज के जो लोग थे वे देवर द मेन ऑफ एक्शन, वे एक्शन में ज्यादा बिलीव करते थे, थॉट में कम। ब्लैंक वर्स वाज एन आइडियल मीटर। इस समय जो है ब्लैंक वर्स आइडियल मीटर था। विलियम शेक्सपियर वाज अ बिग पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। इस समय शेक्सपियर ड्रामा की एक बड़ी पर्सनालिटी थे। पोइट्री में स्पेंसर थे, प्रोज में फ्रांसिस बेकन थे। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दिस वर द थ्री नेम्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। So here I would like to repeat कि defeat of Spanish Armada took place 1588. 1588. Queen Elizabeth was the daughter of Sir, Henry Henry VIII. Henry VIII. Wait. Henry And VIII. rightly said. Queen Elizabeth was the daughter of Henry VIII. And who said it was a noble and poisoned nation, rousing herself like a strong man after Milton. sleep, and Milton. John Milton. John It was the Milton. it was the golden age of which literary form? Drama. Sir, ड्रामा। Drama. drama. ड्रामा में सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन थे? William Sir, Shakespeare. Shakespeare. विलियम शेक्सपियर थे। पोइट्री में Sir, Spencer. Edmund Spenser. एडमंड स्पेंसर। प्रोज में Sir, Francis Francis Bacon. Bacon. फ्रांसिस बेकन थे। बाकी रिलीजियस टॉलरेंस का ये था, सोशल कंटेनमेंट का ये था, अल्टीसिंग पैट्रियटिज्म का ये था, नथिंग मोर। नाउ अब उसके बाद जो यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनको लेकर के थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें थी राइटर्स में। वी विल कवर एडमंड स्पेंसर टुडे। He was a matchless personality of Elizabethan age. Charles Lamb called him poet's poet. ये चीज पूछा जा चुका। Who called him poet's poet? Charles Lamb called him poet's poet. इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या लिखा हुआ, उन्होंने शेफर्स कैलेंडर लिखा, ये भी पूछा जा चुका है। शेफर्स कैलेंडर, शेफर्स कैलेंडर इज द फर्स्ट रिमार्केबल वर्क ऑफ स्पेंसर। इन इट ही पॉइंट द ब्यूटी ऑफ पेस्टोरल इंग्लैंड। इसमें उन्होंने इंग्लैंड का जो ब्यूटी है, पेस्टोरल इंग्लैंड का ब्यूटी थ्रू आउट द ईयर उसको दिखाया। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर इंग्लैंड का ब्यूटी कैसे नजर आता है, और पूरा 12 महीनों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। और इसको उन्होंने 12 इकोलॉग्स में डिवाइड किया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, व्हाट इज इकोलॉग? ECOLOGUE। अगर कभी भी आता है कि व्हाट इज इकोलॉग, इकोलॉग इज द डिवीजन ऑफ द पेस्टोरल पोयम। इसका जो यूज किया गया है किसमें? पेस्टोरल पोयम में। जो पेस्टोरल पोयम है उसमें जो उसका डिवीजन है वही आपका क्या है? इकोलॉग है। इट केम इन 1579। इन इट स्पेंसर इज हिमसेल्फ कॉलिन क्लाउड। स्पेंसर इसमें एक कैरेक्टर के रूप में आते हैं जो कि कॉलिन क्लाउड है। और इन अप्रैल इकोलॉग ही टॉक्स अबाउट क्वीन एलिजाबेथ। और अप्रैल इकोलॉग में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात किया है। और अक्टूबर में उन्होंने क्या किया? हाई रिनेशा का जिक्र किया हुआ है। तो यू विल कम टू नो कि you talk about Edmund Spenser, he was born in 1550 to 1599। तो एडमंड स्पेंसर जो है उस एज के फेमस पोएट है। और एडमंड स्पेंसर को किसने पोएट कहा था? Who gave the title? Charles Lamb. Charles Charles Lamb. Lamb. चार्ल्स लैम्ब ने। एडमंड स्पेंसर ने क्या लिखा है? शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा है। What type of poem is it? It is a pastoral poem या it is a you can say कि epic? Yeah, Pastoral it's poems. epical. Pastoral. Pastoral poems divided into And epilogues. what is eclogue? Sir, division of pastoral Division poem. of Pastoral poem. Division of pastoral poem. And you find ki in this poem the beauty of England has been presented from January to what? Sir, January to December. जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से लेके दिसंबर तक जो इनका ब्यूटी है इंग्लैंड का उसको प्रेजेंट किया गया इस पोयम में। इसमें खुद उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ का जिक्र किया किस महीने में?
अप्रैल सर। अप्रैल में। और स्पेंसर ने अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया, उस कैरेक्टर का क्या नाम है? कॉलिन क्लाउड सर। Colin Cloud. कॉलिन क्लाउड, कॉलिन क्लाउड या कॉलिन क्लाउड के रूप में। तो ये कब आता है? 1579 में आता है। एंड हाउ मेनी मंथ्स डू यू फाइंड इन द पोएम? कितने मंथ्स का उन्होंने जिक्र किया है? 12 12 मंथ्स है, 12 इकोलॉग है, पेस्टोरल पोएम है, और कंट्री साइड ब्यूटी का उन्होंने इंग्लैंड का जिक्र किया है। नाउ इसके अलावा उन्होंने हाईएस्ट रिनेशन का जिक्र कब किया है? अक्टूबर सर। October month. October अक्टूबर इकोलॉग में ही डिस्क्राइब अबाउट हाई रिनेशन। स्पेंसर ने इसके अलावा जो है फेरी क्वीन नाम का एक एपिक अगर कहा जाए लिखा था, ये 6 किताबों में है और इसकी 3 बुक कंप्लीट हुई थी किलकॉर्मन नाम की जगह पे 1589 में, और बाकी 3 1595 में हुई थी। इस 7वीं बुक जो है जल गई थी। तो जो दूसरा है फेरी क्वीन क्या है? व्हाट इज फेरी क्वीन? sir, epic कलेक्शन ऑफ सर एपिक है। ये कौन कहा कलेक्शन ऑफ सोनेट है? आई जस्ट वांट टू नो द नेम, ऑनेस्टली शी हैज टू टेल। यस सर। मैडम नाम बताइए अपना। सर शिवानी। नहीं नहीं, गलत है। मैं आपसे सीधे वो पूछा, आप ये ब्लंडर है, गलती ना करिए। इट्स नॉट द कलेक्शन ऑफ सॉनेट। ये जो है आपका क्या है, फेरी क्वीन आपका एपिक है, एपिक के स्टाइल में लिखा गया है। सर आई एम 6 टॉकिंग किताबों अबाउट में। एमोरेटी। ओके ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट एम्यूनिटी। अच्छा ओके। अभी मैं इसको लेके मैं बात कर रहा था। फेरी क्वीन आपका 6 किताबों में है। 3 जो है आपका कंप्लीट हुआ था Okay, sir. किलकॉर्मन में 1589 में, और 3 बुक्स 1595 में, और ये उसका है। नाउ द नेक्स्ट इज जो शिवानी मैडम ने बताया एमोरिटी है। एमोरिटी कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट्स है, और ये उन्होंने डेडिकेट किया है एलिजाबेथ बॉयल को। तो व्हाट इज एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सॉनेट? कितना सॉनेट है? 88 सॉनेट है। किसको डेडिकेट किए हैं? एलिजाबेथ बॉयल को जो है। फिर है उनका एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन 1594 में उन्होंने कंपोज किया है, और ये उनका सेल्फ मैरिज सॉन्ग है। और ये एक उनका वेडिंग हिम्न है, जो है वेडिंग हिम्न है, शादी पे गाया जाने वाला गीत है। और प्रोथैलेमियन एक उनका और पोयम है, लिरिक है प्रोथैलेमियन, जो अदर्स मैरिज सॉन्ग है, दूसरे की शादी पर गाया जाने वाला गीत है। 1595 में उन्होंने एक एलजी लिखा था, उस एलजी का नाम है एस्ट्रोफेल, और यह एलजी किसकी डेथ पर रही है? सिडनी की डेथ पर रही है। तो आई जस्ट वांट टू रिकॉल हियर कि एस्ट्रोफेल क्या है? कलेक्शन ऑफ सोनेट। sir, elegy एलिजी। एलिजी कलेक्शन सर। ऑफ सोनेट किसने कहा? कलेक्शन ऑफ सोनेट किसने कहा? सर हमने डॉक्टर शशिकांत सर भूल गए थे। नहीं शशि भाई, इतना गलती नहीं होना चाहिए ना। एस्ट्रोफिल देखिए, जल्दबाजी में यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, कि यही चीज वहां पे भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होता है। एस्ट्रोफिल इज एन एलिजी, और ये जो है उनके जो है जो दोस्त थे, सिडनी की मौत पर लिखा गया था। और सिडनी जो है एक फेमस कोर्टियर थे इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, और सिडनी ने ही एडमंड स्पेंसर को एलिजाबेथ के कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराया था। ये इस वजह से तो सिडनी की मौत से बहुत दुखी थे, और उनकी मौत पर उन्होंने क्या लिखा था? एस्ट्रोफिल नाम का एलिजी लिखा हुआ था। एंड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज एपिथैलेमियन? सर मैरिज Marriage sir, hymn. marriage song इट्स अ मैरिज सॉन्ग। एपिथैलेमियन इज अ मैरिज सॉन्ग। और ये जो है क्या है? इज इट सेल्फ मैरिज सॉन्ग या अदर्स मैरिज सॉन्ग? Self marriage song. सेल्फ मैरिज सॉन्ग। और ये जो है सेल्फ मैरिज सॉन्ग क्या है? लिरिक है कि सोनेट है? सर लिरिक। लिरिक है, इट्स लिरिक, लिरिक है। नाउ यू सी नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि आज हम यहाँ तक जरूर कवर करेंगे, दैट वाज हाँ, अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा था ही डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड, वो रोटी के अभाव में मर गए थे। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बेन जॉनसन ने ये बात कही है, किसके बारे में कही हुई है? स्पेंसर के बारे में, कि वो रोटी के अभाव में दम तोड़ दिए थे। ये बात बेन जॉनसन ने कही है। उसके अलावा है फॉर द फेरी क्वीन स्पेंसर इन्वेंटेड अ न्यू फॉर्म स्टैंजा, ये भी पूछा जा चुका है। फेरी क्वीन में स्पेंसर ने नए स्टैंजा को आविष्कार किया, जिसको स्पेंसरियन स्टैंजा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अट्वा एरियास्टोस का अट्वा राइमा का ही एक
नया रूप है उसमें। और इसमें कितना लाइन होता है, इसमें जो है जो स्पेंसरियन स्टैंजा है उसमें 9 लाइन्स है। कितने लाइन्स है? 9 लाइन्स है। इन 9 लाइन्स में शुरू की 8 लाइनों में 5 फीट है, मतलब 5 फीट, या आप कह सकते हैं कि 10 सिलेबल है शुरू की 8 लाइन में। जो लास्ट वाली लाइन है उसमें 6 फीट है, 9वीं लाइन में 6 फीट है। और उसका राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फेरी क्वीन कितने कौन सी स्टैंजा में लिखी गई है? स्पेंसरियन स्टैंजा में कितना लाइन होता है? 9 lines, sir. 9 लाइन्स होता है। शुरू की 8 लाइन्स में कितने फीट है, कितने सिलेबल है? 5 feet 10 syllable. 5 फीट से। और लास्ट वाली 9वीं लाइन में कितना फीट, कितना सिलेबल है? 6 feet 12 syllable. 6 feet, 6 feet से 6 फीट 8 12 सिलेबल, syllable. ठीक है। और ये जो उन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा का मॉडल लिया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है? एरियास्टोस अट्वा राइमा मतलब 8 लाइन स्टैंजा। तो जो अट्वा राइमा एरियास्टोस का था वही था, इन्होंने केवल एक लाइन 9वीं जोड़ करके जिसमें 6 फीट 12 सिलेबल किया, वही चेंज किया हुआ है, बाकी सब अपनी जगह है। और क्या है कि एलिजाबेथन एज की क्या क्या खासियत थी? परफेक्ट मेलेडी। एलिजाबेथन एज की पोइट्री में मेलेडी नजर आती है, ब्यूटी नजर आती है, इमेजिनेशन नजर आता है, और मॉरल प्यूरिटी है, सीरियसनेस है, हर डेलिकेट आइडियलिज्म है, विच कुड मेक ऑल नेचर एंड एवरी कॉमन थिंग ब्यूटीफुल, जिसमें चीजों को क्या किया गया? ब्यूटीफुल बनाया गया। सो यू फाइंड हियर व्हाट एडमंड स्पेंसर, उनका वर्क स्पेंसरियन स्टैंजा। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एमोरिटी पर हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने एस्ट्रोफेल एलजी पर बात किया, शेफर्स कैलेंडर पे बात किए, फेरी क्वीन पर हम लोगों ने बात किया, स्पेंसरियन स्टैंजा पर हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने जो बात किया एपिथैलेमियन पे बात किया, प्रोथैलेमियन पर बात किया। तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड व्हाट वी हैव कवर्ड एलिजाबेथन एज का एक हिस्सा, और उसमें हमने कौन सा चीज कवर किया? एडमंड स्पेंसर। आज हम यहीं तक वो करेंगे। आज आपको एलिजाबेथन एज की चीजों को लेके रिवाइज करना है। कल हम लोग और चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा कि कल हमने बताया था कि सर थॉमस यॉट ने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। हेनरी होवर्ड अलाप सरे ने सोनेट में बहुत बड़ी तब्दीली लाई हुई थी। 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट उन्होंने यूज किया। क्वार्टेंट 4 होता है। कलेक्शन ऑफ सोनेट है जो 1557 में आया हुआ, किसका है? आपका हेनरी होवर्ड अलाप सरे का है और सर थॉमस यॉट का है। इसके अलावा आपको ये बताया गया था हेनरी होवर्ड अलाप सरे ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था वर्जिल की एनीड बुक सेकंड बुक 4 में 1540 में। ब्लैंक वर्ड्स आइडियल मीटर था एलिजाबेथन और जैकोबियन एज में। मैलोरीज का मार डी आर्थर बताया गया कि ये लैटिन में लिखा गया था, कलेक्शन ऑफ आर्थरियन रोमांस है। बाद में इसको कैक्सटन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1485 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे पहला कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो सबसे पहली किताब कहाँ छपी हुई है? ब्रूगेस नाम की जगह पर छपी हुई है इंग्लिश में, और उसका क्या नाम था? द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय करके रहा है। बाकी कल यहाँ पे भी आपको बताया गया था मैलोरीज मार डी आर्थर है, इरेस्मस का प्रेज ऑफ फॉली है, मोर्स का यूटोपिया है, और टिंडल का न्यू टेस्टामेंट वगैरह के बारे में। ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 में रहा। क्रैनमर्स का ग्रेट बाइबल को लेकर के जिक्र किया गया था। ये सारी चीजें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। जॉन वाइक्लिफ का ओल्ड टेस्टामेंट रहा है, विलियम टिंडल का न्यू टेस्टामेंट रहा है, पेट्राश एंड जोसुआ ट्रांसलेटेड नोन एज मैथ्यूज बाइबल, नॉट पेट्राश, पेंटाट्यूक एंड जोसुआ, उनका जो मैथ्यू बाइबल उन्होंने उनका रहा 1537 में। फिर उसके बाद ग्रेट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल 1532 में आया है। फिर है जॉर्ज जॉई एंड रिचर्ड ट्रामिन, जिनेवा बाइबल था 1560 में था। ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 में। दिस थिंग्स यू सी। तो ये पेज बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, और आज भी हमने आपको वो किया, और आज हम लोगों ने एडमंड स्पेंसर को भी कवर किया। तो इस तरह से आप बिल्कुल सीरियल से चल रहे हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड वेरी सून यू विल कवर पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बार हो जाएगा।
तो मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कर लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सोनेट से रिलेटेड, लिरिक्स से रिलेटेड या और भी एलिजी से रिलेटेड तमाम जो और इस तरह के पूछे जाते हैं वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बस एक वो चीजें क्लियर हो जाए कब से कब तक क्या चीजें हैं। ठीक है, तो these were the points which I shared with you. If you want to say something about class, या if you have any suggestion, yeah, if you have any point, you can just share because I have only 1 or 2 minutes. After that, I will conclude here. Thank you, sir. You can, okay, you can send your feedback in class, in group, okay, regarding class, okay. And those who are preparing for PGT, they have to send me individually because I have to share another link. In that link, you will find all the recorded videos of PGT writers.